हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स वाणी बाय राहुल सर. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पीड, वेलोसिटी and acceleration. So we start our lecture with the speed. स्पीड क्या होता है? सपोज you covered some distance. Suppose there is a 2 point A and B. The distance between the 2 point is 10 meter and this distance will be covered by you suppose in 2 सेकेंड. दो पॉइंट है A और B, उनके बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर और आपने ये डिस्टेंस जो है वो 2 सेकेंड्स में कवर कर ली है. तो जो रेशियो आएगा, इट इज योर डिस्टेंस and it is your time taken, then the ratio of distance and time will be your speed. Okay, it is the ratio of distance and the time. So definition will be speed, it is a distance traveled by a body or an object in given time interval. Okay, so you can also write it is a ratio of, or you can write it is a ratio of distance and time. Okay, its formula, इसका formula as you can see I have already written. Speed is equals to distance upon time. S is the speed, D is the distance and T is the time. Unit of speed will be meter per second. Distance is in meter, time is in second. Or if distance is in kilometer, then time will be in hour. So ये दोनों यूनिट्स होती हैं स्पीड की, मीटर पर सेकेंड भी और किलोमीटर पर आवर भी. Now as you can see, the speed depends on distance. Speed depends on distance. Okay, so what are the properties of the distance must be followed by speed also. We have already learned what is distance and what are the properties of the distance. So the same property will be applicable to the speed. For example, as we know distance is a scalar quantity. Distance do not require direction. Similarly, speed is also a scalar quantity. So speed is scalar quantity. स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? वो क्वांटिटीज जिसको बताने के लिए, समझाने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, नो नीड टू गिव द डायरेक्शन. सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट, स्पीड कैन नॉट बी जीरो. स्पीड cannot be negative. ओके, जैसा कि हमने कहा था डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी. तो स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो स्पीड भी कभी भी जीरो नहीं होगी. हमने कहा था डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए. सिमिलरली स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. तो जैसा कि मैंने आपको कहा, जैसे जैसे डिस्टेंस में जो जो अपन ने प्रॉपर्टीज लिखी हैं,
यहां पर भी वही फुलफिल होंगी। नाउ सपोज वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मोशन ओनली। सपोज एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, मैंने पॉइंट 0 ओ ए बी सी ले लिया। यहां की डिस्टेंस है 10 मीटर, यहां की डिस्टेंस है जो 20 मीटर ले लीजिए, यहां की डिस्टेंस 30 मीटर ले लीजिए। ओके, द टाइम इंटरवल बिटवीन ओ एंड ए इज सपोज 5 सेकेंड। यहां पर भी ले लीजिए 5 सेकेंड्स, यहां पर भी ले लीजिए 5 सेकेंड। तो O से A की जो स्पीड आएगी वो क्या हो जाएगी, यहां से यहां की स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स 10/5 इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सिमिलरली यहां की A से B की स्पीड क्या हो जाएगी, तो 20/5 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। B से C की स्पीड क्या हो जाएगी, 30/5 मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द स्पीड। नाउ वी लर्न टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड्स कितने टाइप्स की होती हैं उसको अपन देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड। Speed is divided into 4 types: uniform speed, second one is non-uniform speed, uniform speed, non-uniform speed, average speed and instantaneous speed. These are the 4 types of speeds: uniform speed, non-uniform speed, average speed and instantaneous speed. Now we discuss one by one types of speed. First is uniform speed. Uniform speed. Okay, what is uniform speed? Uniform means same, similar form में. For example, if a body covers equal distance in equal interval of time, then the ratio of distance and time will give you uniform speed. If a body covers equal distance in equal interval of time, then the ratio of the distance and time will give you uniform speed. Okay, let us take one example. Suppose A, B, C and D. There are 4 points. The distance between, we are taking the time interval equal. For example, 5 second, 5 second, 5 second. ओके, हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल लिया। यहाँ पे हमने ए और बी जो पॉइंट है उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 5 सेकेंड माना। सिमिलरली बी और सी और डी का भी मान लिया। सपोज मैं ए से बी जो डिस्टेंस है ये अगर मैं 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ 5 सेकेंड में, अगेन 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ वो भी 5 सेकेंड में, अगेन 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ 5 सेकेंड में।
तो इन दिस केस ए से बी में जो मेरा स्पीड आएगा इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी क्या आएगी स्पीड, बी से और सी के बीच की भी 2 मीटर पर सेकेंड, एंड सी और डी के बीच में मेरी स्पीड क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो एज यू कैन सी इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ये देखिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो टाइम इंटरवल सेम है, तो स्पीड है जो वो क्या आई यूनिफॉर्म आई, डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म में इक्वल था, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the ratio of distance and time will give you non-uniform speed. इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम इंटरवल तो आपने सेम रखा 555, लेकिन अब सपोज ए से बी जो 5 सेकेंड में आपने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, लेकिन बी से सी में आपने 20 मीटर की कर ली, और यहां पे आपने 5 मीटर की कर ली, तो आपने क्या देखा हर टाइम में मतलब जो टाइम इंटरवल है उसमें अपनी डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो डेफिनेशन है इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, तो एज यू कैन सी द डिस्टेंस इज अनइक्वल, कभी 10 है कभी 20 है फिर वापस 5 हो गई। तो जब आप इसका रेशो लेंगे तो रेशो में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ओके 20 बाई यहां कितना आ गया 4, और यहां कितना आ गया 1। तो आप देख सकते हैं स्पीड जो आ रही है कभी 2 आ रही है, कभी 4 मीटर पर सेकेंड आ रही है, कभी 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मूविंग टू द थर्ड टाइप, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड थर्ड वन इज योर एवरेज स्पीड। What is average speed? It is the ratio of total distance traveled by an object to the total time taken. Suppose A, B, C, D. For example, A to B distance is D1, B to C's distance is D2, and C to D distance is D3. The time interval between A and B is T1, T2 and T3. So the average speed will be total distance upon total time. Total distance upon total time. Total distance क्या हो जाएगा यहाँ पे D1 plus D2 plus D3. टोटल टाइम क्या हो जाएगा T1 plus T2 plus T3. तो एवरेज स्पीड इस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। जितनी भी डिस्टेंसेस दी हुई हैं आपको ऐड कर दीजिए, और जो टोटल टाइम है उसको भी आप ऐड कर दीजिए। तो दिस इज योर एवरेज स्पीड। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ स्पीड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड it is the speed of a body or object at any particular instant of time. It is the speed of a body
or an object at a particular instant of time. Okay, the speedometer of the vehicle, gives you instantaneous speed. Suppose you are driving your vehicle, the moment you see the speedometer, वो moment जब आपने speedometer को देखा, सब आप ड्राइव कर रहे हो और आपने स्पीडोमीटर पे आपकी नजर गई, आपने उसको देखा, तो वो जो आपको रीडिंग मिलेगी उस वक्त वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो वी हैव लर्न यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, average speed and instantaneous speed. Now we learn what is velocity and what are the differences between the velocity and the speed. Okay, so start velocity. Okay, velocity is generally represented by V. Velocity is nothing but it is the ratio of displacement and time. It is the ratio of displacement and time. स्पीड क्या था? डिस्टेंस और टाइम का रेशो था. ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो है. तो जैसे हमने कहा था स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, सिमिलरली वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ओके, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. Velocity is a vector quantity. Speed is a scalar, but velocity is a vector quantity. Since displacement can be negative, so velocity can be negative. Okay. Since displacement can be zero, so velocity can be zero. Velocity can be zero because velocity is directly proportional to displacement. Means what? Velocity depends on displacement. So whatever the properties of the displacement, it will be applicable to velocity also. Now unit will be same. Either it is meter per second or किलोमीटर पर आवर. यूनिट स्पीड और वेलोसिटी की सेम रहेगी. या तो मीटर पर सेकंड में हम आंसर लिखेंगे और या हम किस में लिखेंगे? किलोमीटर पर आवर. ओके, अब हम टाइप्स ऑफ स्पीड देखते हैं. जैसे वेलोसिटी जैसे स्पीड जो है वो 4 टाइप्स की थी, वैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी भी जो है वो 4 टाइप्स की है. कौन कौन सी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स डेफिनेशन इज इफ अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time in a particular direction, then the body is said
to be moving with uniform velocity. देखिए यहां पर एक वर्ड ऐड किया गया है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इन अ स्पीड की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी यूनिफॉर्म स्पीड की, तो डेफिनेशन तो कुछ ऐसी ही थी, बस ये पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली जो लाइन है ये नहीं थी. यहां पे यू हैव टू मेंशन दिस लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज इफ डायरेक्शन चेंजेस देन वेलोसिटी विल ऑल्सो चेंज. फॉर एग्जाम्पल, again we are taking straight line motion, same A, B, C, D. There are 4 points A to B. Suppose in this 2 second you have covered 8 meter. Again in 2 second you covered 8 meter. Again in 2 second you covered 8 meter, and your direction of motion is like this, means plus x direction में your direction will remain same. okay, आप यहां से यहां गए, यहां से यहां और यहां से यहां, that is in a particular direction. Now velocity will be what? 8/2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड प्लस means what? You are going in plus x direction. From B to C, again velocity will be 4 meter per second. Direction will be plus. In this case also velocity will be plus 4 meter per second. So this is example of uniform velocity. Suppose now we discuss non-uniform velocity. Non-uniform. तो नॉन यूनिफॉर्म भी बहुत इजी है. देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? या तो ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और या अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर तो कर रहा है लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या है? चेंज हो रही है, या दोनों ही चेंज हो रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है. तो ये तीनों केसेस किस में आ जाएंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में. कैसे? इसमें हम क्या लिखेंगे? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time in a particular direction. या तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस ओके, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और equal distance in equal interval of time, but अब यहां पर but its direction is changing continuously, या with the direction of motion changes, with the direction of motion changes, then velocity is said to be non-uniform. एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को कि सर नॉन यूनिफॉर्म के क्या एग्जाम्पल्स होंगे. सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर हम एग्जाम्पल देखें, सपोज अगेन एक स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जाम्पल लेते हैं. इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, सपोज ए बी सी एंड डी, दीज आर 4 पॉइंट्स. टाइम इंटरवल हम सेम ले लेते हैं 2 सेकेंड
and 2 second. Okay, now in first 2 second you covered, for example, 10 meter distance. In next 2 second you covered 15 meter, and in next 2 second you cover 8 meter distance. So A to B के बीच की वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? तो 5 मीटर पर सेकेंड. यहां कितनी हो जाएगी? 7.5 मीटर पर सेकेंड. रेशो कर रहे हैं हम यहां पर डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और टाइम का. तो यहां कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यू कैन सी if a body covers unequal distance in equal interval of time in a particular direction. Okay, तो आप डायरेक्शन तो यही है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, टाइम इंटरवल सेम है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म. सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूं सर्कुलर मोशन का. सपोज ये एक सर्कुलर मोशन है और वी आर टेकिंग 4 पॉइंट्स. ठीक है, यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो मैंने सपोज 2 सेकेंड्स में कवर करी है. यहां से यहां की डिस्टेंस भी 2 सेकेंड्स में, यहां से यहां भी, यहां से यहां भी. यानी इस बार हमने क्या किया? इक्वल डिस्टेंस तो कवर करी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन यहां पे देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस. डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रही है? यहां पर डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. ओके, so whenever you move on a circular path, it will be considered as a non-uniform velocity because your direction is changing continuously. Whether you cover equal distance in equal interval of time, but direction is not same, direction is changing. So it is an example of non-uniform velocity. Third type of velocity is average velocity. Average velocity. Okay, now third type of velocity is average velocity. देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, पहले हम ये वाली डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, फिर ये वाली डिस्कस करेंगे. हमने ये कहा इन केस द वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट. मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से वो चेंज हो रही है. तो जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द मीन, अर्थमेटिक मीन. सिंपल मीन कर दीजिए. सपोज कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो इसका एवरेज क्या आएगा? तो आप इनिशियल प्लस फाइनल करिए, जैसा कि यहां दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. इट विल बी योर v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी. एक डेफिनेशन और क्या लिखी है यहां पर? If the velocity of a body moving in a particular direction changes with time, okay, then the ratio of displacement. Now देखिए, इधर देखिए, डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, यानी यहाँ पे क्या हो गया? इस बार वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है. यहाँ हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट. जबकि यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, देन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट to the time taken during the journey is called average velocity. यानी यहाँ पे आपको वही जैसे अपन ने एवरेज स्पीड का देखा था, सेम यहाँ पर है, बस वहां पे टोटल जो था डिस्टेंस था और यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. बिकॉज पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब ही है डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी. लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड की ही तरह होता है. जैसा हमने ये पढ़ा था कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड इज व्हाट? स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं, द मोमेंट यू सी द मीटर, ठीक है, तो वो मीटर तो आपको क्या बता देगा? स्पीड. और अगर पास में कोई वहां पे कंपास रखा हुआ है या जो डायरेक्शन भी बता रहा है, उसी मूवमेंट पे आपको डायरेक्शन भी बता रहा है, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आपकी वेलोसिटी. तो डेफिनेशन में तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है.
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन तो वही है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी और अ व्हीकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, सपोज ये आपका स्पीडोमीटर है, दिस इज योर स्पीडोमीटर, जो आपको क्या दिखा देगा कि आपकी स्पीड कितनी है। और अगर इसके साथ में यहाँ पे अगर कोई कंपास हो या कोई डायरेक्शन बताने वाला डिवाइस हो तो वो क्या बता देगा, आपको डायरेक्शन भी बता देगा। तो जब आप स्पीड प्लस डायरेक्शन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आज हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखा। और नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन और इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा कि स्पीड कितने टाइप्स की होती है और वेलोसिटी कितने टाइप्स की होती है। और विद एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशंस के एग्जांपल्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। तो आपको अगर वीडियो सही लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसको चैनल को, फिजिक्स वाणी को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम वापस मिलते हैं। थैंक यू।